and on we'll go. Hello students, yes, today I am coming with accountancy important questions as well as blueprint and as well as your examination patterns, right? So as usual, first of all we are talking about our examination pattern as well as blueprint of your accountancy, right? So my dear students, first of all we are going with the chapters that is called, we have fundamental, change in proportion ratio as well as goodwill, admission, retirement and death, resolution, shares, debentures, financial statement, in which we have chapter number 1 and chapter number 2, accounting ratios and cash flow statement. So basically here students you have to focus more on which chapter that we are talking about today. So we are just discussing about which chapter is coming on for the which marks, for the, how many marks the chapter is coming, and you got the focus you have to put towards the different chapters. So let us go with these things. Like for example, we are talking about fundamental, the chapter 1 for accountancy. We have basically the chapter fundamental is coming for 9 to 11 marks. Actually this chapter is a variations in different chapter papers. So the variation come to know that 9 to 11 marks we have for the fundamentals, right? So you have to focus more on fundamental. The first chapter that you learn in first time for your accountancy, that is the first chapter, that is called fundamental, and it's a very easy chapter. You have to focus more on this chapter. And what are the important topics that we are discussing right now? अभी हम उसको डिस्कस करेंगे, पहले मार्क्स डिस्कस करते हैं. After that we have change in proportion ratio as well as goodwill. So basically अगर हम बात करें तो 3 marks 1 plus 3 को हम डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इतना भी एग्जामाइन किया है, एनालाइज किया है सैंपल पेपर्स को, तो उसमें हम देख पा रहे हैं कि चेंज इन प्रोपोर्शन रेशियो मतलब चेंज इन पीएसआर जो है ओनली 1 मार्क का क्वेश्चन उसमें दिख रहा है एंड 3 मार्क्स फॉर गुडविल, राइट? नाउ लेट अस टॉक अबाउट नेक्स्ट चैप्टर कॉल्ड एडमिशन, and admission for 8 marks. You can see that 8 marks questions are coming from admissions. And next chapter retirement and death. For retirement it is 7 marks and for death it is 9 marks. But actually you see that there is a choice between admission and retirement, right? So just see that कि अब आप बोलोगे सर competition same नहीं बैठ रहा है, मार्क्स थोड़े ज़्यादा हो रहे हैं. It should be because of different choices is given, right? चॉइस आ रही है इसलिए कॉम्पोजिशन थोड़ा ज्यादा बैठेगा. इसका मतलब ये नहीं है कि इट शुड बी अ रॉन्ग इंटरप्रिटेशन, ये राइट इंटरप्रिटेशन है, बस चॉइस के हिसाब से जो मार्क्स है थोड़ा सा ज्यादा हो गया. आफ्टर दैट वी हैव रिजोल्यूशन, एंड रिजोल्यूशन इज फॉर 5 मार्क्स. शेयर्स इटसेल्फ इट फॉर 14 मार्क्स. शेयर्स अपने आप में 14 मार्क्स का चैप्टर है, तो दैट वी हैव टू फोकस ऑन शेयर्स एट 14 मार्क्स. आफ्टर दैट डिबेंचर्स फॉर 10 मार्क्स. And together we say that this book consists for 24 marks, right? After that financial statement, that is called chapter 1 and chapter 2. I just write there also. It is for chapter 1 and 2, right? Chapter 1 and chapter 2. So इस वाले financial statement की अगर बात करूँ तो ये 7 marks का चैप्टर आ रहा है. किसका? 7 marks का. अब एक्चुअली क्या है कि सब हेड्स और हेडिंग्स का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है. मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको बताऊंगा, डिस्कस करूंगा, इसलिए वीडियो को एंड देखना बहुत इंपॉर्टेंटली. आपके लिए गिफ्ट भी लेकर आया हूँ. वो गिफ्ट क्या है उसको सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, है ना? आगे देखते हैं. अकाउंटिंग रेशियोज 5 मार्क्स चैप्टर है और कैश फ्लो स्टेटमेंट 8 मार्क्स चैप्टर है. इसका मतलब क्या होगा कि अगर हम ये बोलें कि ये बुक जो है ये हमारी सेकंड बुक है, ये कितने मार्क्स की है, तो वी से दैट इट इज फॉर 20 मार्क्स, राइट? अगर आप इन दोनों को भी अच्छे से कर लेते हो भाई तो 44 मार्क्स कहीं नहीं गए हमारे, है ना? और थोड़ा बहुत समझ आता ही होगा. तो दैट इज कॉल्ड कि भाई इन दोनों को कर लिया और सिर्फ इसको फंडामेंटल कर लिया तो बहुत सही पहुंच जाएगा. मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो बिल्कुल अभी कुछ नहीं किए हैं, उनके लिए बोल रहा हूँ कि वो बेसिकली सबसे पहले इन दोनों उसको फोकस करें और फिर फाइनली फंडामेंटल पे फोकस कर लो तो बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा आपके साथ, राइट? चलो ये तो था हमारा ब्लूप्रिंट. Now let us talk about question paper pattern. जो आपका पेपर है, जो एग्जाम है, उसका पैटर्न कैसा होगा अकाउंटेंसी का. सो वी से दैट 1 मार्क क्वेश्चन 20 मिलेंगे आपको, 3 मार्क क्वेश्चन 6 क्वेश्चंस होंगे, 4 मार्क में 3 क्वेश्चंस होंगे,
और 6 मार्क में 5 क्वेश्चन होंगे, राइट। सो बेसिकली क्या इसमें ओवरऑल चॉइस है? हाँ, पेपर में बहुत अच्छी जबरदस्त चॉइस मिल रही है आपको। बेसिकली अगर हम बात करें 20 क्वेश्चंस का, जो 20 ये जो 1 मार्क क्वेश्चन है, जो 20 क्वेश्चन है 1 नंबर वाले, उसमें 7 चॉइस आएंगे, 7 चॉइस होंगे, मतलब कुल मिलाकर क्वेश्चंस कितने होंगे? हो गए आपके पास 27 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चंस कर दोगे, अपने आप में एक अच्छी बात है। आपको जो 6 क्वेश्चन आ रहे हैं 3 नंबर वाले, इसमें आपको 2 चॉइस मिलने वाली है, और 3 क्वेश्चन आ रहे हैं 4 नंबर वाले, इसमें आपको 1 चॉइस मिलेगी, और 6 मार्क्स वाले जो 5 क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें आपको 2 चॉइस मिलने वाली है। तो पेपर जो है कंप्लीटली चॉइसेस से भरा पड़ा है, आराम से आप कर पाओगे, बहुत इजीली कर पाओगे। एज यूजुअल मैं हमेशा आपको कहता हूँ अकाउंटेंसी में पास होना बहुत आसान है, बस काम क्या करना है कि अगर आप अपने टीचर्स को सुनते हो ढंग से तो ही उतने में इनफली आप आराम से पास हो जाओगे। नाउ राइट नाउ अब जो बच्चे हैं सर अब क्या करें, लास्ट मोमेंट बताओ अब क्या करना है? तो बेटा लास्ट मोमेंट में तो मैं ये बोलूँगा मेरी सारी वीडियोस देखते रहो, बस अगर आप कंप्लीटली अपना कंप्लीट डिवोशन आप मेरे को दे दो, मेरे ऊपर डालो सारी चीजें, तो कंप्लीटली मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं बहुत अच्छे नंबर से आपको पास करा दूंगा। अब जो मैं वीडियोस डाल रहा हूँ सारी वीडियोस देख लो, मैंने पुरानी वीडियोस सब चैप्टर्स की वीडियोस डाल रखी है ऑलरेडी, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हो, राइट। लेकिन अभी चिंता मत करो, सारी वीडियो में दोबारा से रीपोस्ट करने वाला हूँ, दोबारा नई वीडियोस बनाऊंगा, अपडेटेड वीडियोस बनाऊंगा और आपके पास आती रहेंगी। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बेल आइकन दबाना पड़ेगा। लेकिन ये वीडियो भी खत्म नहीं होती, लास्ट में बोला था ना, लास्ट में क्या करना, गिफ्ट मिलेगा, उसके लिए हमें और आगे बढ़ना पड़ेगा। अभी हम बात करते हैं हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, कि बेसिकली हमें क्या करना है, हम क्या क्या कर लें लास्ट मोमेंट पे सर, जिससे हमारे नंबर अच्छे आ जाए। तो देखो भाई, अगर फंडामेंटल की अगर हम बात करें तो फंडामेंटल में आप सबसे पहले क्या करो बेटा, एक तो देखो पी एंड एल एप्लीकेशन आना ही है, ठीक है। तो जब पी एंड एल एप्लीकेशन आएगा सबसे तैयारी कर लो, पी एंड एल एप्लीकेशन अकाउंट की तैयारी कैसे कर लो। इसमें भी क्या करो, इसके अंदर देखो किस किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। एक तो आईओएल, एक आईओडी, और एक हमारा रह गया कमीशन, मैनेजर्स कमीशन। ठीक है, तो ये पीएनएल का ये पर्टिकुलर पार्ट जरूर कर लीजिएगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन का, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक रेंट वाला ही बनता है, वो भी कर लीजिएगा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट पार्ट बता रहा हूँ जो कि बहुत आसानी से आप कर पाओगे, है ना। दूसरा, क्योंकि चैप्टर 11 नंबर का है, 9 से 11 नंबर चैप्टर तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो दूसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है पास्ट एडजस्टमेंट। क्या है? पास्ट एडजस्टमेंट। ठीक है, पास एडजस्टमेंट तो आपको पता है करना ही करना है। और तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर से कोई बनता है तो वो है हमारा गारंटी वाला। कौन सा टॉपिक है? हमारा गारंटी वाला टॉपिक है। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो जैसे हमने बताया पूरे इस चैप्टर में से 3 टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट इज कॉल्ड पीएसएल एप्रोप्रिएशन, जिसमें आईओएल, आईओडी और मैनेजर्स कमीशन कर लीजिए। पास एडजस्टमेंट जो मैंने आपको बताया कि पास एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आना ही है। एज वेल एज इसके साथ साथ गारंटी वाला टॉपिक जो है वो जरूर कर लेना, गारंटी भी आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाई देखो, पहली बात आप बोलोगे कि सर 3 टॉपिक, हाँ 3 टॉपिक अच्छे से कर लेना, क्योंकि ये जो चैप्टर है वो 9 to 11 मार्क्स का है, तो सब कुछ इंपॉर्टेंट बनता है। जो बता रहा हूँ लिटरली लिख के ले लो, ये टॉपिक्स आपको आपके एग्जाम पेपर में मिलने ही वाले हैं, इसलिए इनको बहुत 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 ढंग से कर लो, समझ लो, राइट। चलो नेक्स्ट बात करते हैं हमारे गुडविल वाले चैप्टर की। चेंज इन पीएसआर वाले चैप्टर की अगर हम बात करें तो मैं आपको बता देता हूँ कि चेंज इन पीएसआर का सबसे पहला जो पार्ट है वो क्या है, वो क्या आने वाला। सिंपल सा रिविजन तो वही वाला सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो वाला पार्ट कर लीजिए, है ना। मतलब एक ही नंबर मैंने आपको बताया, एक ही नंबर में क्वेश्चन पूछने वाला है। लेकिन बेस्ट पार्ट क्या है, इसमें आपको गुडविल निकालने का जो मेथड्स है ना, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन, एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन, सुपर प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड। लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कि गुडविल को कैलकुलेशन, देखो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल विद एब्नॉर्मल प्रॉफिट। abnormal profit as well as loss,
ठीक है, मतलब जो एबनॉर्मल प्रॉफिट और एबनॉर्मल लॉस वाले गुडविल के क्वेश्चन थे ना, अगर आप देखो तो स्टार्टिंग में क्वेश्चन दे रखे हैं, सबसे पहले जो गुडविल शुरू हो रही है उसमें स्टार्टिंग क्वेश्चन ही इन्हीं से हो रही है, इनसे एबनॉर्मल प्रॉफिट एबनॉर्मल लॉस से, एबनॉर्मल गेन से, एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉस दे रखे हैं ना, इनको ढंग से कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है इसमें, ठीक है। और फॉर्मूले सारे याद कर लेना। मैं फिर वही बोल रहा हूँ कि भाई एक्चुअली क्या होता है, मान लो नहीं निकालना आ रहा यार, समझ ही नहीं आ रहा कैसे करना है क्वेश्चन पेपर, मुझे क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा करना क्या है, लेकिन यार एक चीज तो दिख रही है, सुपर प्रॉफिट निकालना है या नॉर्मल प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट निकालना है, क्या निकालना है ये तो पता पड़ जाएगा ना। तो बस यही मैं बोल रहा हूँ, अगर ये पता पड़ जाएगा तो बहुत सिंपल सी बात है कि आपको करना क्या है, उसके लिए आपको सिर्फ फोकस करना है फॉर्मूलों पर, क्योंकि आपको पता है कि हमारे कॉम्पिटेंसी में स्टेप मार्किंग होती है ना, तो जब फॉर्मूले लिखोगे तो फॉर्मूले से भी काम बन जाएगा। इसलिए बी श्योर बेटा, अगर अच्छे से पढ़ना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं तो कुछ थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना, तो लर्निंग भी करना पड़ेगा। अब बोलो सर कॉम्पिटेंसी में लर्निंग कह रहे हो, भाई देखो अब ये लास्ट टाइम चल रहा है इतना, तो ये भी समझने वाला टाइम है कि मैं आपको फॉर्मूले भी समझा दूं, राइट, तो आप समझ के कर लेंगे। अभी बेसिकली क्या है, 3 तो फॉर्मूले ही है, 4 तो फॉर्मूले ही है, तो ढंग से कर लो, पढ़ सकते हो आराम से। तो फॉर्मूला फॉर्मेट्स अच्छे से याद कर लो। अब आप बोलोगे सर फॉर्मेट तो बन के आ रहा है, फॉर्मेट बन के आ रहा है, फॉर्मेट का मतलब ये नहीं होता कि लाइन ही खींच ली, पर्टिकुलर अमाउंट लिखा और हो गया काम, नहीं। फॉर्मेट का मतलब है जो आपको पता है, जैसे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में आपको पता है कि भाई जो भी एसेट्स हैं जो बढ़ रही हैं वो बाय साइड में आएंगी, जो एसेट घट रही है वो टू साइड में आएंगी, ये पता है ना, तो ये बेसिक चीजें करो उसके अंदर, आंसर नहीं आए कोई बात नहीं, लेकिन फॉर्मेट बनाओ जो आपको पता है ये चीज आएंगी, वो चीज डालने की पार्टनर्स कैपिटल है, अब पार्टनर कैपिटल तो आएगी, कैपिटल डालो, ठीक है। रियल रिवैल्यूएशन में जो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो आएगा ही आएगा, वो डालो। तो बेसिक चीजें जो है वो तो करो ना, फिर बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाओ, जो बेसिक चीजें हैं वो तो करनी ही करनी है। इसलिए इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि कंप्लीटली सारे क्वेश्चन करना है, छोड़ना किसी को नहीं है ना। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा एडमिशन वाला पार्ट। एडमिशन में देखो फुल फ्लेज क्वेश्चन तो बनता ही है, इसमें रिवैल्यूएशन होगा, ठीक है। तो बेसिकली रिवैल्यूएशन पे फोकस करो, और इसमें जो वर्किंग कैपिटल था ना, वर्किंग कॉम्पनसेशन रिजर्व वाले क्वेश्चन थे, ये वाला चीज ध्यान से करो, आईएफआर वाले क्वेश्चन थे, और संग में हिडन गुडविल, और संग में हिडन गुडविल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब भाई करने ही पड़ेंगे, देखो समझ लो करना ही करना पड़ेगा, इसलिए फोकस कर रहा हूँ, कर लो ये 3 बेसिक फोकस कर लो, ये तीनों पर रिवैल्यूएशन अकाउंट, वर्किंग कॉम्पनसेशन का जो एडजस्टमेंट वाला पार्ट है वो, और हिडन गुडविल वाला। और गुडविल का एडजस्टमेंट तो आपको पता ही है कि जो एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन आएगा वो इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं यहाँ पे भी लिखता हूँ एडजस्टमेंट वाला जो क्वेश्चन है ना, इसको भी कर लीजिएगा। जिसमें हम पहले क्या करते हैं, पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, फिर पार्टनर्स कैपिटल में जो कैपिटल को एडजस्ट करते हैं ना, कि विड्रॉइंग वाला सुना होगा ना, ब्रिंग इन और विड्रॉइंग वाला जो पार्ट है वो वाला जरूर कर लेना। और अगर नहीं आती कोई बात नहीं, मेरी वीडियोस का वेट करो, मैं आगे सारे क्वेश्चन समझाऊंगा अभी, तो चिंता मत करो, अभी आगे वीडियोस को देखते रहोगे तो भी वो ढंग से पास हो जाओगे, राइट। चलो अब हम बात करते हैं हमारे रिटायरमेंट की और डेथ की। तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, वैसे तो इसमें हमारी चॉइस आती है, लेकिन क्योंकि डेथ अपने आप में 9 मार्क्स का चैप्टर आ रहा है, बहुत ज्यादा मार्क्स का है, तो डेथ को बहुत अच्छे से करो, डेथ का चैप्टर बहुत छोटा सा ही है, लेकिन इसमें बेसिकली फोकस करो एग्जीक्यूटिव्स अकाउंट के लिए। एग्जीक्यूटिव्स अकाउंट जो है ना वो बनाना आपको आना चाहिए, इसको सीख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से ये इंपॉर्टेंट ज्यादा है, इसको कर लो। उसके बाद अगर रिजोल्यूशन की बात करें तो रिजोल्यूशन में बेटा जनरल एंट्री का क्वेश्चन जरूर आएगा, जर्नल एंट्रीज पर एक क्वेश्चन कर लेना आपको। अगर रिजोल्यूशन में अगर डीक्यूएल को जनरली अगर आप प्रेफर करते हो तो डीक्यूएल को अगर आप ओपन करोगे तो डीक्यूएल में जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन दे रखे हैं, स्टार्टिंग जो है चैप्टर की वही जनरल एंट्री क्वेश्चन हुई है, उनको ढंग से कर लो बेटा, वो जरूर आएंगे, क्योंकि जनरल एंट्री के चांसेस बनते हैं इस बार बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि देखो चैप्टर 5 मार्क्स का है, ध्यान से सुनना, चैप्टर 5 मार्क्स का है, इसका मतलब 6 मार्क्स वाले में तो यहाँ आना नहीं है, तो इसके लिए इसीलिए बेसिकली क्या करना है, क्योंकि छोटा क्वेश्चन आएगा तो जनरल एंट्री जनरली वो आपको देगा कि 4-5 पॉइंट दे देगा, 5 पॉइंट दे दिए, 4 पॉइंट दे दिए, और बस आपको उसमें जनरल एंट्री करनी होगी, इसलिए फोकस कर लो इस पर, रिजोल्यूशन में जनरल एंट्रीज के ऊपर। अब शेयर्स की अगर मैं बात करूं तो बेटा शेयर्स में अगर हम बेसिक से बात करें तो वो है हमारा प्रोराटा, प्रोराटा ऑब्लिक, मैं प्रोराटा के ऑब्लिक लगा रहा हूं, फोर फीचर, इसमें देखना जरूर चॉइस आएगी, प्रोराटा का क्वेश्चन और फोर फीचर क्वेश्चन में चॉइस होगी, आप आराम से दोनों में से जो आपको चाहते हो कर सकते हो। पूरा चैप्टर बहुत आसान सा है, बहुत इजी सा है, जिनको नहीं आता है थोड़ा वेट करो, अदरवाइज मैंने पहले से भी डाल रखी है वो देखो, नहीं तो आगे आने वाली वीडियोस को देखते रहिएगा। और जो बच्चों को इंग्लिश में प्रॉब्लम, इंग्लिश की वीडियोस बच्चों की आने वाली है, फिजिकल एजुकेशन
इंग्लिश, कंप्यूटर, IT सारे सब्जेक्ट्स की वीडियोस मैं आपको पोस्ट करूंगा। तो बिल्कुल भी चिंता की बात नहीं कि हमें कुछ और भी पढ़ना पड़ेगा, नहीं, आप उतना उतना करोगे सफिशिएंट होगा। इंग्लिश में मैं आपको राइटिंग क्वेश्चन अच्छे से करा दूंगा और बेसिकली लिटरेचर का जो बेसिक समरी पार्ट है वो मैं आपको करा दूंगा। तो ये इससे बहुत कुछ आपको बेनिफिट मिलेगा। तो इसमें बेसिकली प्रो राटा जो है, प्रो राटा वाला जो पार्ट है वो और 4 फीचर ढंग से कर लो इसका, क्योंकि आने ही वाला है। संग में आपने लगा प्रो राटा का जो एडजस्टमेंट वाला है ना, सॉरी 4 फीचर का, जिसमें हम लोगों का प्रीमियम एडजस्ट करते हैं, प्रीमियम एडजस्ट करने वाला क्वेश्चन जरूर कर लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। उसके बाद और अगर नहीं पता है, अब तक नहीं किया है प्रीमियम एडजस्टमेंट करने वाला क्वेश्चन, तो थोड़ा वेट करो, आगे वीडियो डालूंगा, उसको देख लेना। उसके लिए बेल आइकन दबा देना, जिससे कि वीडियो आए तो सबसे पहले आपको पहुंच जाए, आपको ढूंढना ना पड़े कि मैंने वीडियो कहाँ पे डाली, आपके पास नोटिफिकेशन आता रहना चाहिए, राइट। डिवेंचर्स की अगर मैं बात करूँ, देखो डिवेंचर में एक मिक्सअप क्वेश्चन आने वाला है, एक मिक्सअप क्वेश्चन होगा जिसमें सब कुछ कंबाइन करके पूछ लेगा वो आपसे। जैसे आपने देखा कोलेटरल सिक्योरिटी वाला क्वेश्चन है और इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन है, उसको बेसिकली फोकस कर लीजिएगा, क्योंकि वो सब कुछ इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। इसलिए डिवेंचर बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, डिवेंचर तो आप सारे क्वेश्चन भी करोगे, DQA के तो बहुत छोटा चैप्टर है उसके अंदर, तो आराम सारे क्वेश्चन कर लो। मैं तो कह रहा हूँ लास्ट मोमेंट में सिर्फ इलस्ट्रेशंस कर लो, क्वेश्चन को छोड़ो, सिर्फ इलस्ट्रेशन फोकस कर लो, तो भी अच्छे से हो जाएगा, राइट। फिर आता है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब आती है बारी हमारे गिफ्ट की। मैंने कहा था ना वीडियो को एंड तक देखना, जिससे कि गिफ्ट मिलने वाला है। भाई जिन बच्चों को देखो बेसिकली अगर इन चैप्टर में से क्या आने वाला है, तो मैं आपको बोलूँ, एक तो थ्योरेटिकल पार्ट जो मैंने वीडियो बना रखी है ऑलरेडी, वर्टिकल एनालिसिस, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, राइट, उसको देख लीजिएगा अच्छे से, वो वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा उस वीडियो को। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है हेडिंग्स और सब हेडिंग्स वाला पार्ट। अब हेडिंग सब हेडिंग में बच्चों कंफ्यूजन है, तो मैंने टोटल 110 करीब वीडियोस वो प्रिपेयर करी हैं, हेडिंग्स और सब हेडिंग्स, उसके बाद कुछ नहीं आने वाला। तो उसको वैसे आपको पता ही ऑलरेडी, लेकिन रीड करना जरूरी है ना, इसलिए मैं अगर इनको वो गिफ्ट चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर कि सर मुझे वो पेपर भेज दो जो आपने क्या किया है, बनाया है, इसके लिए हेडिंग और सब हेडिंग, और 7 नंबर पक्के हो जाएंगे। फिर कितने नंबर, 7 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। तो इसलिए बहुत इजी चैप्टर है, दोनों चैप्टर बहुत आसान से हैं, फर्स्ट और सेकंड, इनको अच्छे से कर लेना। हेडिंग सब हेडिंग, जो गिफ्ट है मैंने आपको बताया गिफ्ट क्या है, वो जो मैंने क्वेश्चन पेपर तैयार किया, इट इज नॉट एक्चुअली क्वेश्चन पेपर, इट इज अ सॉल्यूशन पार्ट, इट इज अ नोट्स पार्ट, जो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा और आपके व्हाट्सएप पर। अगर आपको चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप कर लीजिएगा, ठीक है। इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई कॉस्ट नहीं है उसका। आगे अकाउंटिंग रेशियोज की अगर हम बात करें, तो अकाउंटिंग रेशियोज में बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो बेटा फॉर्मूले याद कर लो, फॉर्मूला से ही काम बनता है। स्टार्टिंग के जो 5 हैं वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उन 5 को इंपॉर्टेंटली कर लो, मतलब करंट रेशियो, क्विक रेशियो, इसके बाद जो 5 मतलब 1 2 ऐसे करके जो 3 पार्ट हैं, 4 पार्ट है, 5 पार्ट है, स्टार्टिंग के जो 5 पार्ट है ना उनको अच्छे से कर लो, तो बेसिकली आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा अकाउंटिंग रेशियो में। लेकिन वही मैं आपको बोल रहा हूँ फॉर्मूले याद कर लो, है ना, इस पर फॉर्मूले पर फोकस करो। और इसमें मैंने बोला मैं जो आपको गिफ्ट दे रहा हूँ उस गिफ्ट पर फोकस करना, तो ये क्लियर हो जाएगा। और लास्ट आता है कैश फ्लो क्वेश्चन, जो मैं कहूँगा ये फुल फ्लेज क्वेश्चन होगा। इस फुल फ्लेज क्वेश्चन को ढंग से कर लेना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। एक और बात मैं जोड़ना चाहूंगा, शेयर्स वाले चैप्टर में एक और पार्ट कर लीजिएगा, बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्शन जो है, बैलेंस शीट का जो एक्सट्रैक्शन वाला पार्ट है ना, उसको कर लीजिएगा कि बैलेंस शीट कैसे फॉर्म होती है कंपनी की। बेसिकली देखो फॉर्मेट में तो मैं आपको बोलूँ कैश फ्लो आप पढ़ ही रहे हो, कैश फ्लो क्वेश्चन आएगा तो फॉर्मेट तो वहाँ से बन के आ जाएगा आपको, लेकिन बैलेंस शीट बनानी आनी चाहिए। इसमें बेसिकली वो होता है ना शेयर कैपिटल और आपका रिजर्व एंड सरप्लस, ये सब चीज़ें जो आपको निकालनी है, एसेट्स और लायबिलिटीज को बराबर करना है, इस बेसिक पार्ट पर फोकस कर लीजिएगा, राइट। और एट लास्ट मैं यही बोलूँगा भाई, सारी की सारी वीडियो आपको मिलती रहेंगी, सारे चैप्टर्स की, सारे सब्जेक्ट्स की, एज वेल एज फिजिकल एजुकेशन, इंग्लिश ऑल्सो आई विल प्रोवाइड यू बिफोर योर एग्जाम्स। वन शॉट्स तो हमारे आते ही रहेंगे, वन शॉट में जरूर फोकस कर लेना। और सारे के सारे जो टॉपिक्स मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, इन सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियोस बनाता रहूँगा, इसलिए वीडियो फोकस करते रहिए। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। थैंक यू फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।